Yes, in the last lecture, we had covered the basic introduction of our subject. Okay, what is advanced web programming? We have already learned about the web programming in the semester second. Okay, in the first year. Okay, web programming, in that subject we had used the PHP, JavaScript, and HTML for the web programming. Now, in this semester, we have the subject advanced web programming. So, for web programming, we will use the advanced language, means C# language. Okay, and .NET framework we will use. Okay, in the last lecture, we had seen about the .NET, basic .NET. The full form of .NET is Network Enabled Technology. Okay, the .NET is a platform, or you can say the framework. It is not a language. Okay, it is not a language. .NET is not a language. Okay, remember this thing. .NET is a framework. Okay, framework, or you can say platform. The framework means it is a collection of tools, programming languages, and libraries which we are used for making our applications. We can make different types of application under the .NET framework using the different languages. Okay, ये हमने देखा in the last lecture में. The .NET is a framework, network enabled technologies in which we can create different types of application. Okay, yes. Now next, what is .NET framework? Same, the .NET is developed by the Microsoft. Okay, this is a product of Microsoft, and the first version was 0.1 in 2000. It came in 2000, year 2002. Okay, in this .NET, under the .NET framework, we can create different type of application. We had covered this topic in the last lecture. For example, ASP.NET web application. We can create the web applications which run in the browser, called the web application. So we can create the web application using different types of language. If you know the C++ language, if you know the Python language, then using that language you can make your web application. Okay, ऐसा नहीं है कि only C# language हमको पढ़ना है, हाँ, but yes, in our subject, in our subject we have to learn C# language. Which language? C# language. Okay, using C# language we will make our applications, web applications in .NET framework. Okay, remember these things. In the .NET framework, under the .NET framework, you can use any type of languages. Okay, जो भी language you are comfortable, you can make application using that language. Java आ रहा है तो Java से करो, C++ आ रहा है C++ से करो, Python से आ रहा है Python से करो, VB लैंग्वेज आ रहा है तो VB से करो. हाँ, बट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में वी विल टीच C# लैंग्वेज. हम लोग ओनली C# लैंग्वेज यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे अंडर द .NET फ्रेमवर्क. क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है. बट आपको याद क्या रखना है, आप कोई भी लैंग्वेज आपको जो आ रहा है वो लैंग्वेज आप चूज करके, यू कैन चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. ओके, आप चूज कर सकते हो, आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज से बनाना है. बट ऑलवेज हमारे प्रैक्टिकल्स में हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? C# लैंग्वेज. वाई? बिकॉज हमारे सिलेबस में C# लैंग्वेज दिया हुआ है. व्हाट इज C# लैंग्वेज, हाउ टू यूज दैट लैंग्वेज, ओके, हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स और कोडिंग्स इन दैट लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में. ओके, yes. Next, web services we can create. Protocols जो है, protocols provide different types of services. You know the different types of protocols, so that protocol also you can create under the .NET framework using any languages. Windows application you can create. Okay, applications which run under the Windows environments. Okay, Microsoft Word हो गया, या तो कोई भी Windows application जो है आप यूज करते हो विदाउट इंटरनेट, जो यूज करते हो वो application you can create. Okay, under the .NET framework. Console application also you can create. कंसोल एप्लीकेशन मतलब जिसका आउटपुट विल कम्स इन द कंसोल. ओके, जो CMD आप बोलते हो, कमांड प्रॉम्प्ट जो है, कमांड प्रॉम्प्ट में जो आप एप्लीकेशंस रन करते हो, ठीक है, तो वो वैसे एप्लीकेशन आल्सो यू कैन क्रिएट. देन मोबाइल एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट अंडर द .NET फ्रेमवर्क. ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो. आप लोग जनरली एंड्रॉइड यूज करते हो, बट इफ यू वांट टू क्रिएट द मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क में क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है. Then class libraries also you can create. Okay, अभी तक आप लोगों ने you have only used the class library, आपने उसको use किया. But if you want to make your own libraries, okay, in any languages, so you can make under the .NET framework. तो ये सारे types के application we can create under the .NET framework. तो you should know which type of applications we can create. क्योंकि आपको अभी प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज करना होगा. इन दिस सेमेस्टर यू हैव टू चूज अ प्रोजेक्ट टॉपिक. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एप्लीकेशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एज अ IT इंजीनियर. ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन मतलब सारा एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह जो इंटरनेट पे रन हो रहा है, आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट हो गया जो आप वेब में रन करोगे, इंटरनेट पे रन करोगे, तो वो सारा क्या हो गया? वेब एप्लीकेशंस.
सर्विसेज अगर आपको बनाना है तो आप क्रिएट वो कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो। यू हैव 2 लैंग्वेजेस इन दिस सेमेस्टर, एक तो जावा पढ़ रहे हो, एडवांस जावा आई थिंक आपको है अभी सेमेस्टर में, एंड सेकंड है डॉट नेट लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो आपको जो लैंग्वेज या कंफर्टेबल जो है आप उसमें यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन आप चूज करोगे, आपको प्रोजेक्ट जो भी आपको, अगर डॉट नेट ईजी है तो डॉट नेट चूज करो, डॉट नेट में प्रोजेक्ट क्रिएट करो। इफ यू हैव कंफर्टेबल विद दी जावा, एडवांस जावा के साथ कंफर्टेबल हो तो जावा लैंग्वेज चूज करो। बट अभी थोड़ा 1 मंथ वेट करो, ठीक है, 1 मंथ आपको, क्योंकि अभी अभी सेमेस्टर में आपको ये लैंग्वेजेस पढ़ना है, तो पहले देखो कि एडवांस जावा कैसा है, डॉट नेट क्या है, डॉट नेट में कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो वो थोड़ा 1 मंथ जाने दो, देन यू विल डिसाइड ओके कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए। यस, तो ये सारे टाइप के एप्लीकेशन वी कैन क्रिएट नाउ। यस, यहाँ से हमारा बाकी था द लैंग्वेजेस, ओके, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बोला डॉट नेट इज अ फ्रेमवर्क इन विच वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा ना, यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, तो व्हाट इज लैंग्वेज? द डॉट नेट सपोर्ट मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, द डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है इट सपोर्ट्स मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 60 से ज्यादा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें चूज कर सकते हैं। अभी तो आपको बेसिक ही पता है, सी प्लस प्लस पता है, जावा पता है, पाइथन है, बट मोर देन 60 लैंग्वेजेस जो है वो सपोर्ट करता है डॉट नेट। उसमें से विच इन विच 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन एंड डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसमें से जो 11 लैंग्वेजेस है, दिस आर द 11 लैंग्वेजेस विच आर डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। बाकी और भी लैंग्वेजेस यू कैन यूज, ओके, बट ये जो 11 लैंग्वेजेस है वो डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। सी शार्प, डॉट नेट, वीबी डॉट नेट, सी प्लस प्लस, जे शार्प आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, एफ शार्प, जावा स्क्रिप्ट, डॉट नेट, विंडोज, पावर शेल एंड रूबी एंड पाइथन, सी ओमेगा, ठीक है, ASML, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज, ऑल आर दी लैंग्वेजेस। जैसे आप सी प्लस प्लस पढ़े, ठीक है, डॉट नेट क्यों लगा है? बिकॉज ये लैंग्वेज हम लोग कहाँ पे यूज करें? अंडर दी डॉट नेट फ्रेमवर्क, इसलिए उन्होंने पीछे डॉट नेट लिख दिया है। सी शार्प एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है, सी शार्प इज अ लैंग्वेज लाइक जावा, लाइक पाइथन, ठीक है। वीबी इज अ लैंग्वेज, वीबी लैंग्वेज विजुअल बेसिक करके एक लैंग्वेज है, ठीक है, दैट इज वन लैंग्वेज कि जिसको आप अंडर द डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, उसके लिए उसको पीछे लगाया डॉट नेट। सी प्लस प्लस आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी सी प्लस प्लस इन द लास्ट सेमेस्टर, सॉरी आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा होगा, उसमें आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अंडर द डॉट नेट यू कैन क्रिएट दी एप्लीकेशंस, ठीक है। जे शार्प, एफ शार्प ऑल्सो लैंग्वेजेस, ये सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। ये 11 लैंग्वेजेस, दिस 11 लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर supported or developed by Microsoft, sorry developed by the Microsoft, okay। तो .NET framework 60 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जो भी लैंग्वेज आपको आ रहा है उसके थ्रू आप लोग उसको एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट, ओके। द रिमेनिंग ये जो 11 है, द 11 आर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट ने, खुद ने ये लैंग्वेजेस बनाए, बट द रिमेनिंग नॉन माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेजेस विच आर सपोर्टेड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क बट नॉट डिजाइन एंड डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। बाकी जो लैंग्वेजेस है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है बट वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन यू शुड नो, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे या तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क में काम करना है तो एज अ नॉलेज आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है, बेसिक क्या है। बेसिक के बाद ही यू कैन डिसाइड कि ये आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, ओके। यू कैन राइट डॉट नेट एप्लीकेशन इन सी शार्प, एफ शार्प और विजुअल बेसिक्स में लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सी शार्प हमको पढ़ना है, ठीक है, इट इज अ सिंपल मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये थोड़ा लैंग्वेजेस के बारे में बोला है बट ठीक है, इसको इग्नोर करो। बट द मेन थिंग क्या है, डॉट नेट सपोर्ट्स more than 60 programming languages, out of the 11 languages are designed by Microsoft and बाकी जो है वो और किसी ने डेवलप किया है बट वो सपोर्ट कर रहा है डॉट नेट फ्रेमवर्क, ओके। तो ये दिस आर द 11 लैंग्वेजेस और इसमें से फ्रॉम दिस वी विल लर्न सी शार्प डॉट नेट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वन, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा लैंग्वेज दिया है? सी शार्प एज अ सिलेबस हमको कवर करना है तो हम लोग ओनली दिस लैंग्वेज हम लोग करेंगे, ठीक है। दिस लैंग्वेज वी विल लर्न एंड ऑल दी एप्लीकेशंस और दी प्रोग्राम्स जो है हम लोग प्रैक्टिकल जो भी करेंगे वो ये लैंग्वेज यूज करके करेंगे। कौन सा लैंग्वेज? सी उसका है एंड SHARP शार्प, ओके, उसको ऐसे हैश जो है उसको ऐसे बोलते हैं शार्प, SHARP शार्प। और डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम लोग ये वाला लैंग्वेज यूज करेंगे, सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है। तो नाउ अभी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो सी शार्प लैंग्वेज स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में। Yes. Now Visual Studio is a very powerful integrated development environment where you actually write your C# or .NET programs. कोई भी
डॉट नेट फ्रेमवर्क जो आपको यूज करना है, ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो you have to install in your system. Okay, when you will install Microsoft Visual Studio in your system, then आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि what you want to create, कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट करना है, ठीक है। वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद यू विल गेट दी अनदर ऑप्शन कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, सी शार्प लैंग्वेज चूज करना है, वीबी करना है, सी प्लस प्लस करना है, कि कोई अनदर लैंग्वेज चूज करना है। तो आपको ये अंडर दिस विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, ओके, इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आपको कौन सा टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करना है एंड कौन सा लैंग्वेज यूज करके आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब व्हेन वी विल स्टार्ट दी प्रोग्रामिंग, तो यू विल गेट दी आइडिया कि इसके कैसे उसको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। इट इज पॉपुलर बिकॉज इट सपोर्ट्स कोड एडिटिंग, इंटरफेस डिजाइन, उसमें सारी चीजें हम लोग करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यू कैन डाउनलोड, ठीक है, आप उसको इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो उसको नेट पे से, कोई उसका लाइसेंस वर्जन वगैरह नहीं है, बट हाँ आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे से उसको डाउनलोड कर सकते हो। 1 मंथ का फ्री ट्रायल रहता है उसका, अगेन 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 उसको रीलॉग इन करके यू कैन यूज, ठीक है। तो इसका जो सेटअप आई विल प्रोवाइड दिस सेटअप टू यू, ओके, विजुअल स्टूडियो का सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, देन यू कैन डाउनलोड। All sort of companies use .NET, including Dell, Accenture, TCH, HCL, Epic System. ये जो well-known companies है that using this .NET framework, वो सारे .NET framework पे काम करती है, ठीक है। मैंने आपको पहले in the last lecture I told you कि when you will search for the jobs, तो you will get the options कि आपको कौन से एरिया में काम करना है, जावा में काम करना है, पाइथन में काम करना है, .NET पे काम करना है, ठीक है। यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। तो यू हैव टू नाउ दिस इज अ टाइम फॉर डिसाइडिंग विच लैंग्वेज में आपको पावरफुल बनना है, ठीक है। आपके पास अभी आप पाइथन तो ऑलरेडी है लर्न, ओके, अभी आपके पास एडवांस जावा है, .NET है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से एरिया में जाना है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज पे आपको कमांड लेना है। तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिकल करना है, मेहनत करना है, देन यू विल स्टैंड कर पाओगे मार्केट में। ओके चलो, यस, डॉट नेट फ्रेमवर्क, ओके, एज अ बेसिक मैंने आपको बताया डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो दिस आर दी कंपोनेंट्स विच आर कवर्ड इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ये टूल्स एंड लैंग्वेजेस हैं जो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, कंपोनेंट्स, लाइब्रेरीज, लैंग्वेजेस, ठीक है। वो जो कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। these are the components of .NET framework. The first है common language runtime. You can also you can see the facilities which are provided by the .NET framework. Okay, CLR explain करूँगी, I will explain one by one all this layer. The first one is CLR, common language runtime. The .NET framework provides the feature of CLR. What is CLR? I will tell you in the next slide. Then base class library. Then ADO.NET. This is for the database. This is for the class libraries. Okay. Then web services and web forms. You can create the different types of web services, web forms, Windows form you can create. Then common language specification, CLS, and all the languages. So this जो figure जो है, ठीक है, the figure क्या रिप्रेजेंट करिए द डॉट नेट फ्रेमवर्क्स का कंपोनेंट्स के डॉट नेट फ्रेमवर्क्स क्या है, ठीक है। तो यू कैन सी मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि यू कैन क्रिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो ये लेयर में अलग अलग एप्लीकेशन दिखा यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये लेयर में लैंग्वेजेस दिखाया है, ठीक है। एंड क्लास लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करा है, तो यहाँ पे दिखा। तो जस्ट दिस फिगर गिव दी ओवरव्यू ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क के क्या है, ठीक है। तो हमको उसको वन बाय वन पढ़ना है। यस स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? यू कैन अंडरस्टैंड ना व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क? यस और नो? ओके, ठीक है। तो प्लीज अगर इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क इन बिटवीन द लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्योंकि बेसिक है। इफ यू विल क्लियर योर बेसिक देन यू कैन डू समथिंग, ओके, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट अभी थोड़ा बेसिक्स है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, वो थोड़ा सा आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, चैप्टर 1 में। The .NET framework is composed of 4 main components: the common language runtime, the framework class library, other models, मतलब जो हमने फिगर एक्सप्लेन फिगर देखा वही है, ओके। फिगर को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन लैंग्वेज रनटाइम, क्लास लाइब्रेरीज, ठीक है, लैंग्वेज क्लास लाइब्रेरीज, देन डेटाबेस, एप्लीकेशंस एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये हम लोग
These are the main components है. Common Language Runtime CLR, the first basic जो function है .NET framework का, that is CLR, Common Language Runtime. Then .NET also provide the class libraries for different languages के लिए. Other modules means data, XML, Windows form, web forms also we can create, and different types of languages. So these are the components you can say, or facilities you can say, the provided by the .NET framework. Okay, yes, the first one is CLR, Common Language Runtime. Okay, CLR, this is a main component of .NET framework. Okay, जो .NET framework है वो support करता है, it provides the facility for CLR, Common Language Runtime. What is the Common Language Runtime? Yes. What is JVM? You know what is JVM? आपको पता है JVM क्या करता है? What is the function of JVM in Java? Java virtual machine का क्या काम है? चलो जल्दी से बताओ. JVM आएगा तो आपको CLR 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. Yes. What is the JVM in Java? Java virtual machine क्या है? What is the function of JVM? JVM क्या करेगा? पढ़ चुके ना basic Java? You have learned basic Java ना in the last semester. Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So then what is JVM? JVM सारे जावा के एप्लीकेशंस रन करता है. Yes. Okay. कौन है? किसने आंसर दिया? शोएब. शोएब. Yes. Good. ठीक है. तो JVM क्या करेगा? It converts your source code into the machine code. ठीक है. Java virtual machine क्या करता है? Convert करता है नेटिव कोड में. You know कि जो कंप्यूटर नोज ओनली मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर को क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है. ठीक है. मतलब 0 and 1 जो है, तो जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम्स यू आर रिटन इन योर कोई भी लैंग्वेजेस में लिख रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू द मशीन कोड. किस में कन्वर्ट होता है? जब रन करते हो, कंपाइल करते हो, तो योर सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड. मशीन कोड को क्या बोलते हैं? नेटिव कोड भी यू कैन सी. तो नेटिव कोड एंड मशीन कोड बोथ आर द सेम. ठीक है. तो नेटिव कोड एंड मशीन कोड दोनों एक ही वर्ड. आप नेटिव कोड भी यूज कर सकते हो या तो मशीन कोड भी वर्ड यूज कर सकते हो. बोथ आर सेम. तो जो भी प्रोग्राम्स जो है, जो सोर्स कोड जो है, ठीक है, सोर्स कोड सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो एट दैट टाइम क्या होता है? सी का कंपाइलर क्या करता है? हर एक ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज द कंपाइलर. ठीक है. तो कंपाइलर विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझता है? मशीन कोड समझता है. आपका आउटपुट विल बी डिस्प्ले. तो .NET जो मैंने बताया, द .NET इज अ .NET सपोर्ट द मल्टीपल लैंग्वेजेस. मल्टीपल लैंग्वेज .NET सपोर्ट करता है. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना एप्लीकेशन .NET में क्रिएट किया है वो VB लैंग्वेज यूज करके किया है. आप जो आपका एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो वो जावा लैंग्वेज यूज करके कर रहे हो. तो क्या होगा? अंडर द .NET फ्रेमवर्क मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करा है, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड. ओके. कंप्यूटर को क्या समझता है? मशीन कोड समझता है. तो व्हाट द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड? .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड द CLR. So CLR will convert the program into the native code. What is the function of CLR? The CLR converts your source code. तो सोर्स कोड मतलब जो भी, सपोज if I am making my project application using the VB language, then my VB का जो सोर्स कोड मैंने लिखा है, it will convert into the machine code by the CLR. अगर आपने .NET फ्रेमवर्क में आपने कोई प्रोग्राम किया यूजिंग दी जावा लैंग्वेज, ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CLR? CLR क्या करेगा? आपका जो सोर्स कोड है, व्हाट इज द सोर्स कोड? यू नो ना व्हाट इज सोर्स कोड? व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड मतलब क्या? व्हाट इज द सोर्स कोड? यस, जल्दी फास्ट बताओ मुझे. व्हाट इज सोर्स कोड? चलो जल्दी बताओ मुझे. यस, चलो कोई तो बताओ. नाउ यू आर इन द 5th semester, so you should know what is source code. Yes, अरबाज, शोएब, जिसको आ रहा है मुझे आंसर बताओ. चलो व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड किसको बोलते हैं? क्या है सोर्स कोड? क्या है? यस, फास्ट. जरूर पता है आपको व्हाट इज सोर्स कोड? और कौन कौन है लेक्चर में? सब लोग हो ना आज?
कीर्ति व्हाट इज सोर्स कोड, अभय, सूर्या, श्रुति, जिसका नाम नहीं दे रही वो भी बोलना है उनको, अगर पता है इफ यू नो व्हाट इज सोर्स कोड। यस, इसने रिप्लाई दिया है, देखते हैं। टेक्स्ट फाइल होता है मैम जिसमें सारा कमांड्स होता है। यस आपका, यस ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग, यस ओके ठीक है। सोर्स कोड जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। टर्बो सी में आप जो प्रोग्राम टाइप करते हो, प्रिंटफ, स्कैनफ, दैट इज सोर्स कोड। जावा में जो प्रोग्रामिंग टाइप करते हो तो प्रोग्रामिंग इज सोर्स कोड। जो आप लिखते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग जो कोडिंग करते हो, तो कोडिंग इज योर सोर्स कोड। ओके, पाइथन में कोडिंग करते हो, ठीक है, दैट इज सोर्स कोड। तो व्हाट इज द सोर्स कोड, मतलब क्या, जो प्रोग्रामिंग विच यू आर टाइपिंग इन दी सॉफ्टवेयर, या तो कंपाइलर में जो आप टाइप करते हो, प्रोग्रामिंग एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखते हो A+B, दैट प्रोग्राम इज योर सोर्स कोड। या तो कोई भी फैक्टोरियल के लिए जो भी प्रोग्राम्स यू आर टाइपिंग इन दी कंपाइलर, उसको आप लोग क्या बोलते हो, सोर्स कोड। ओके, तो जब व्हेन यू विल रन योर प्रोग्राम, जब आप आपके प्रोग्राम को ही सोर्स कोड बोलते हैं। ओके, याद रखो, प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है, जो सोर्स कोड है, उस जब आप उसको रन करते हो, एट दैट टाइम दैट प्रोग्राम और सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड। किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। दिस इज अ बेसिक थिंग। ये कंसेप्ट सेम इन एवरी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज कर दो उसमें ऐसे ही होता है। क्या होता है, जब आप सोर्स कोड लिखते हो, जब कोडिंग करते हो, प्रोग्राम लिखते हो, उसको जब रन करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज सेम फॉर ऑल दी लैंग्वेजेस। हर एक लैंग्वेज में ऐसे ही होता है। पाइथन में वैसे होगा, जावा में वैसे होगा, सी में भी वैसे ही होता है। जब उसको रन करते हो, कंपाइल करते हो, तो वो क्या करता है, सोर्स कोड को, आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ओके, तो what is CLR? The CLR converts your source code into the native code or machine code. Native code and machine code both are the same word. Again, I am repeating. So, what is the function of CLR? The CLR converts the program, आपका program and source code both are same. Program and source code दोनों एक ही word है. Program converts the program और source code into the native code, into the machine code. Native code में, machine code में वो convert करता है. Okay. इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन दी फ्रेमवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। इफ आई एम राइटिंग माय प्रोजेक्ट यूजिंग दी जावा, ओके, तो CLR जो है, CLR क्या करेगा, जो जावा का कंपाइलर है उसका यूज करके मेरे जो जावा का प्रोग्राम जो मैंने लिखा है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। इफ यू आर राइटिंग दी सेम प्रोग्राम यूजिंग दी VB लैंग्वेज, ओके, तो VB का जो CLR कंपाइलर जो है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, क्या करेगा, VB का जो कंपाइलर है वो कंपाइलर यूज करके VB के सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में। बट मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले इट विल कन्वर्ट इनटू दी IL। मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में हाउ टू CLR वर्क। But what is the function of CLR? The CLR converts the source code into the native code, into the machine code. Okay, this is a line का definition you should remember. Common language runtime. Okay, the CLR convert your program or source code into the machine code or native code. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Yes, how the CLR works? How the CLR works? ठीक है, CLR कैसे वर्क करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अगर इफ आफ्टर माई एक्सप्लेनिंग इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क। ठीक है, आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट दिस इज अ मेन थिंग, आपको ये पता होना चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग इन दी .NET फ्रेमवर्क। जब आप .NET फ्रेमवर्क में काम करते हो तो यू शुड नो कि जो आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस करके वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज नाउ आपका 11 o'clock हो गया, यू हैव दिस सेमिनार, तो आपको फ्री करने के लिए बोला गया है, ओके, स्टूडेंट्स को। तो नाउ मैं ये लेक्चर अभी स्टॉप कर रही हूँ, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। ओके, तो आज हमने बेसिक देखा व्हाट इज CLR, ओके, लैंग्वेजेस कौन सा .NET फ्रेमवर्क जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज हमको पढ़ना है इन अवर सिलेबस वो देखा। विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना है फॉर यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क, ये हमने पढ़ा। देन .NEट फ्रेमवर्क का कंपोनेंट्स क्या है एंड मेन CLR कैसे वर्क करेगा ये हम लोग कल देखेंगे। बेसिक मैंने बताया व्हाट इज CLR, CLR कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू द नेटिव कोड। ठीक है, दिस ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट्स। जब आप इंटरव्यू में जाओगे कोई कंपनी में, अगर आप बोल रहे हो आप .NEट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो दिस आर ऑल द कॉमन क्वेश्चंस, ये कॉमन क्वेश्चंस रहेगा। .NEट फ्रेमवर्क क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म है कि लैंग्वेज है, वो उसमें आप क्या एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, ऑल आर दी कॉमन क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको याद, मतलब ये कंसेप्ट याद रखना है। ओके, आपको इंटरव्यू में ये बेसिक ही क्वेश्चंस रहेगा, जो आपका फर्स्ट लेवल जो रहेगा वो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, तो एज अ
सब्जेक्ट तो छोड़ दो, बट आपको कुछ करना है, ठीक है, उसके हिसाब से याद रख के सब पढ़ो। नाउ दिस इज ए लास्ट ईयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डॉट नेट इजी लैंग्वेज है, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट यू हैव टू अटेंड ऑल दी लेक्चर्स, ओके। चलो एक मिनट।